शहनाज और खबर आसनसोल देख रहे हैं आप, स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, Decor wallpaper and interior decoration. मोबाइल हॉस्पिटल, Mobile hospital. स्टाइल होम फर्नीचर, Style home furniture. स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, Spurs fertility and women's care. आसनसोल कार बाजार ये आसनसोल कार बाजार एंड को स्पॉन्सर्ड बाय फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर वर्ल्ड धनतेरस धमाका ऑफर फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। और आइए बढ़ेंगे खबरों की तरफ। गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल की पेशी लगभग महीने बाद आज आसनसोल के सीबीआई अदालत में की गई, जहां सीबीआई अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने अनुब्रत मंडल की जमानत खारिज करते हुए फिर से इन्हें 14 दिन के लिए जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। जी हां, अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 11 नवंबर को होगी। वैसे मालूम हो कि अनुब्रत मंडल आसनसोल जेल हिरासत में है। কেষ্টদা, পঞ্চায়েত ইলেকশন কেমন হবে এবার? 12 বছর ভোট পরে পঞ্চায়েত ইলেকশন কেমন হবে? কিছু বলবেন তো না? কিছু আপনার মেয়ে বলবেন কি দেখেছে দিল্লিতে? ছবিটা দেখ। কেষ্টদা, পঞ্চায়েত ইলেকশন কেমন হবে এবার? 12 বছর ভোট করে পঞ্চায়েত ইলেকশন কেমন হবে? কিছু বলছো না? চলো গাছটা তুলে দাও। স্যার সামনে শুনুন স্যার, একটু সামনেটা ছেড়ে দেন স্যার। স্যার একটু সামনেটা ছেড়ে স্যার। দাদা, পঞ্চায়েতের জন্য দলীয় কর্মীদের কিছু বলবেন? কিছু বার্তা দেবেন? আপনাকে সিবিআই পৃষ্ঠপোষক বলছে, আপনার মেয়েকে ডেকেছে। দিদি, আপনার মেয়েকে চলুন কিছু বলবেন? পঞ্চায়েতের জন্য কিছু বলবেন? দলীয় কর্মীদের পঞ্চায়েতের জন্য আপনার মেয়েকে আমাদের হয়েছে, কারণ এই চার্জশিট আপনারা জানেন ভ্যাকেশন বেঞ্চে জমা পড়েছিল। আজকেই ভ্যাকেশনের পরে প্রথম আদালত রিওপেন হওয়ার পরে আমরা যে চার্জশিট দেখতে পাই, এবং চার্জশিটে একমাত্র অভিযোগ ওনার বিরুদ্ধে যেটুকু আমি দেখতে পেয়েছি একটা গ্লান্স, সেটাতে দেখা গেছে যে ওনার নিজস্ব কোনো যোগাযোগ স্থাপন কিন্তু করতে পারেনি সিবিআই। এই যাদেরকে অভিযুক্ত, এই মামলাতে যারা প্রধান অভিযুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন সিবিআই, তাদের সাথে কিন্তু কোনো যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেননি। সে সংক্রান্ত বিষয়ে যখন আমরা প্রশ্ন তুলি আদালতে, আদালত যখন ওনাদেরকে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন, তার কিন্তু সঠিক উত্তর বা যথাযথ উত্তর ওনারা দিতে পারেননি। এবং আরও অবাক লেগেছে আমাদের যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা যখন এই প্রশ্ন তুলি যে 84 নম্বর উইটনেস শ্রী মাধব কৈবর্ত, তিনি মৃত, ইনি এই ঘটনা অর্থাৎ তিনি অ্যারেস্ট হওয়ার বহুদিন আগেই মৃত। তো সত্য তদন্ত হলে উনি যে মৃত তাকে সাক্ষী করাই যেত না। তো তাকে কি করে সাক্ষী করালো? আদালত যখন এই প্রশ্ন করলেন, তারও কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি সিবিআই। আবার এই যে চার্জশিট হওয়ার পরেও 79 ডেজ একজন মানুষ কাস্টাডিতে, তারপরেও এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারছেন না সিবিআই। আবার বলছি, এটাকে দুর্ভাগ্য বলবো না সৌভাগ্য বলবো বুঝতে পারছি না এখনো। তবে খুব দুঃখজনক, একজন ভদ্রলোক যিনি অসুস্থ, আপনারা সবাই জানেন, তার মেডিকেল হিস্ট্রি রয়েছে, তাকে 79 ডেজের এই প্রশ্ন চার্জশিট হওয়ার পরে এই প্রশ্নগুলোর যখন তার আদালত যখন জিজ্ঞেস করছেন সিবিআইকে, আমরা যখন এই প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেছি, তার উত্তর দিতে পারছেন না সিবিআই। রাজনৈতিক পরিচয় দিয়ে চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে, এটা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন?
দেখুন, আফটারঅল চার্জশিটে একজন অ্যাকিউজড থাকেন, একজন অভিযুক্ত থাকেন। অভিযুক্তর কোনো রাজনৈতিক পরিচয়, তার জন্য স্পেশাল ট্রিটমেন্ট হবে, এটা কিন্তু আমি আইনের বইয়ে পড়িনি কোথাও। তাই জন্য এটা সংক্রান্ত বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু ওনাকে যে বলা হচ্ছে বারবার ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পারসন, তো এই তদন্ত আপনাদের বলে রাখি, এই তদন্ত কিন্তু উনি যখন কাস্টাডিতে ছিলেন, কাস্টাডিতে যেভাবে থেকে এসছেন তার আগেও উনি বাইরে ছিলেন এবং তখনও তদন্ত চলেছে। আমার তো মনে হয় না যে উনি কোনো প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, যদি বা প্রভাব বিস্তারের কোনো প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রশ্ন সিবিআইয়ের তরফ থেকে তোলা হয়েছিল যে উনি এখন কাস্টাডিতে ইমিডিয়েটলি ওনাকে নেওয়া উচিত, না হলে প্রভাব বিস্তার করছেন, এরকম কিন্তু কোনো তরফ থেকে কখনো এই অভিযোগ সিবিআইয়ের তরফ থেকে হয়নি। ওনাকে কি ফের জেলে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হলো? ওনাকে আগামী 11 তারিখ অবধি, 11ই নভেম্বর অবধি जुडिशियल कस्टडी निर्देश दिया है। आस्था का महापर्व छठ पूजा आने ही वाला है, जिसकी धूम पूरे शिल्पांचल में साफ तौर पर देखी जा सकती है। छठव्रतियों की सेवा में कोई कमी ना रहे, इसके लिए खास इंतजामात किए जा रहे हैं। तो कहीं कार्यक्रम का आयोजन कर छठव्रतियों के बीच साड़ियां व पूजा की सामग्री वितरित की जा रही है। इसी संदर्भ में कल वार्ड नंबर 47 के पार्षद राजेश तिवारी के नेतृत्व में 150 छठव्रतियों के बीच छठ सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, पूर्व पार्षद सैफुद्दीन अंसारी समेत प्रबल बोस मुख्य रूप से उपस्थित थे। আপনাদের সামনে শাড়ি বিতরণ করছেন আমাদের আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক মহাশয়। আপনারা কেউ হুড়োহুড়ি করবেন না, কেউ হুড়োহুড়ি করবেন না। স্লিপ যার কাছে আছে সবাই পাবেন। স্লিপ যার কাছে আছে সবাই পাবেন, কেউ হুড়োহুড়ি করবেন না। आपको बता दें कि सबकी जो साड़ी है, जिसको इसके पास स्लीप आप एक नाम से लीजिए, बच्चों को मत कीजिए, सबको मिलेगा। हर दिया गया है, आप लाइन लगाकर आइए, हड़बड़ मत कीजिए। ये छठ पूजा त्यौहार का, मैं इस छठ पूजा के मौके पर ये पाक त्यौहार, बहुत ही साफ सुथरा ये त्यौहार जिसको हम लोग मनाते हैं। और अब जानते हैं कि हर साल इसी तरीके का प्रोग्राम करके बंगाल की अपनी कन्या ममता बनर्जी की तरफ से और मुलायदा के देख देख में और हमारे इस वार्ड के काउंसलर जनाब राजेश तिवारी जी की तरफ से और हमारे यहाँ के तमाम मेंबरों की तरफ से ये छठ पूजा के मौके पर साड़ी वितरण किया जा रहा है। साड़ी का चाहिए काउंसलर है राजेश तिवारी, वो बंटी जिसको हम लोग बुलाते हैं, वो मौजूद है हमारे साथ में। हम लोग का बहुत दिन का साथी और एक्स ब्यूरो चेयरमैन, एक्स काउंसलर हम लोग का प्रबल बोस तो कोलूदा हम लोग का साथ में मौजूद है, और एक एक्स काउंसलर है हम लोग का गुड्डू दा, और इसके साथ साथ सारे जो यहाँ पर कार्यकर्ता है दिनेश दा से लेकर सभी को यहाँ पर मौजूद है। देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि छठ पूजा का समय, छठ पूजा का अवसर पर कुछ नया कपड़ा आप लोगों का बीच में वितरण करने के लिए, सभी को देना संभव नहीं होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं उन तक पहुँचने का जिसको जरूरत है। आज छठ पूजा के महाउत्सव पर ममता दी द्वारा हमारे तृणमूल से हमारे वार्ड के जितने भी महिलाएं हैं जो छठ पर्व करती हैं, उनका साड़ी वितरण किया जा रहा है। तकरीबन कितनी महिलाओं के बीच में? करीब 150। आसनसोल के उप मेयर अभिजीत घटक महाशय जी यहाँ पर आ रहे हैं। राजेश तिवारी। अगर आप करना चाहते हैं स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज और अदर एसेसरीज की खरीदारी, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल है। हमारे दुकान में चल रहा है धमाकेदार ऑफर, जहां खरीदारी करने पर आप पा सकते हैं 15,000 रुपए तक का कैशबैक, फ्री गिफ्ट
अप टू 40% डिस्काउंट, 0 डाउन पेमेंट के अलावा और भी कई अट्रैक्टिव ऑफर्स। तो नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेईडांगा, आसनसोल। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब्स के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अच्छी कंडीशन में चाहिए सेकंड हैंड कार, तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगे सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा और टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफ़र के साथ हमारे यहाँ चल रहा है धनतेरस धमाका ऑफर। तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे शोरूम आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास, सितला मोड़, ADDA, आसनसोल। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर। हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड, अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। आपकी जो इज्जत अफजाई की जाएगी उसके लिए सराहनीय ही न कहिए बल्कि मेरी भाभी हैं, उन्हीं के जेर निगरानी में श्रीमती ज्योतिका बनर्जी, उन्हीं के नेतृत्व में और साथ में शेख हसीना जो हमारी कटवा से BSMB के बॉम्बे संघालक बुद्धिजीवी मंच के अरकान है, वो भी साथ में रहेगी। थोड़ी देर के बाद उन लोगों से मैं आप लोगों का परिचय कराऊंगा। इसके साथ हमारे बीच में जमंडा ब्लॉक के साइड 2 के खेत मजदूर के ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब लाटू काजी जी मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाए। अपने दोस्त, अपने कलीग से मैं गुजारिश करता हूं, मोहम्मद इसाक से जो फरीदपुर से ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। हमारे बीच हमारा साथी, हमारा छोटा भाई मनोहर खान साहब भी मौजूद हैं। आप लोग बैठेगा, आप लोग स्टेज पे आइए, मेहमान हैं आप लोग,
बार बार अनाउंसमेंट करना पड़ेगा आप लोगों का नाम। आइए इस स्टेज पे टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं ज्योतिका भाभी से आज का जो प्रोग्राम है बॉम्बे संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच का, आप तमाम लोग ये सोचते होंगे कि बॉम्बे संख्यालघु बुद्धि मंच ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस का एक विंग है बॉम्बे संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच। हमारे पार्टी में महिला कमेटी है, ठीक उसी तरह से ये बोंगियो जनानी जो है वो भी हम लोग का संगठन है। आपको याद होगा कि हमारे यूथ तृणमूल कांग्रेस एक यूनिट था, साथ में एक विंग हम लोग का जुआ का हम लोग का विंग भी चलता था। आज का मेन मकसद है कि देश के अंदर में जो हालात है उस हालात को देखते हुए बोंगियो संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के माध्यम से एक आवाज को बुलंद किया जा रहा है और ये आवाज देश के अपोजिशन को दबाने की कोशिश जो देश के सरकार की है, मोदी सरकार की जो है, कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं उसके खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उसके विरुद्ध में तृणमूल कांग्रेस और बोंगियो संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के सैनिक हर जिला में इसका विरोध करेंगे। आप जानते हैं कि जिस तरह से जो ओपोजिशन के लोग आवाज उठा रहे हैं उसके आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको आवाज दबाने का कोशिश ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। आज देश का अर्थव्यवस्था क्या है? देश का अर्थव्यवस्था शर्मा चुकी है। 8 साल बीजेपी सरकार को हो गया गद्दी पे बैठे। 8 साल के अंदर में इन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। आप तमाम लोगों को याद होगा कि 2014 में जब मोदी सरकार लोगों के बीच में जाते थे तो उनका नारा था हर हर मोदी, घर घर मोदी। उनका एजेंडा में उन्होंने कहा था अपने एजेंडे में कि काला धन जो है देश के विदेश के
कि देश के नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था कि किसानों का आय को दुगना कर दिया जाएगा। এটাও কিন্তু একটা শাখা সংগঠন এবং আমাদের অধ্যাপক ওয়াইজুল সাহেব আছেন, বন্ধু মানুষ। একসাথে প্রায় 20 বছর ধরে আমরা কলকাতায় রাজনীতি করছি এবং এটা আমাদের দলের একটা শাখা সংগঠন রূপে স্বীকৃত বলে উনি সপ্তাহে 2 দিন তৃণমূল ভবনেও বসেন এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন বঙ্গীয় যে বুদ্ধিজীবী, সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী সেল, বুদ্ধিজীবী সেলের কাজ কি? দেখুন, আমাদের একটা কিন্তু মাইনরিটি সেল আছে, তারপরেও দল বুদ্ধিজীবী সেলকে স্বীকৃতি দিয়েছে কাজ করার জন্য। কেন দিয়েছে? কথাটার মধ্যে একটা বুদ্ধিজীবী শব্দ আছে, মানে সমাজে যে ক্ষেত্রের মানুষরা বুদ্ধিকে সম্বল করে তাদের কাজ করেন, সমাজকে পথ দেখান, তাদের নিয়ে মূলত এই সংগঠনটা। এর সাথে আরো মানুষজন আছেন, যেমন এখানে অধ্যাপকেরা আছেন, শিক্ষকেরা আছেন, সৃষ্টিশীল মানুষেরা আছেন, আরো সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা আছে, যারা মূলত সমাজকে তাদের বুদ্ধি দিয়ে, তাদের চিন্তা দিয়ে পথ দেখান। এবং এখন আমরা এমন একটা মানে ভারতবর্ষ একটা বিচিত্র জায়গার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা জায়গাতে একটা করে কঠিন চ্যালেঞ্জ আসছে, কারণ কেন্দ্র সরকার এবং ভারতবর্ষের যে শাসক দল, इजाफा हुआ। एक बार भी इसके यहाँ ईडी या सीबीआई पहुंचा, लेकिन आज हमारे बंगाल जो पूरे मुल्क को दिशा दिखा रही है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो बंगाल पूरे मुल्क में लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ का ताकत के खिलाफ में, उसके नेतृत्व के पीछे में ईडी और सीबीआई लगा करके इनको डराया जा रहा है। लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि आपको ईडी और सीबीआई का डर दिखाने से हमारे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता या तृणमूल कांग्रेस के जो लोकल विंग है, छात्र विंग है, यूथ का विंग है, महिला का विंग है, बंगो जर्नलिस्ट का मंच है, हमारा बंगो ये बुद्धिजीवी संस्थानों को मंच है, ये जो हमारे कर्मी है ये डरने वाले नहीं। दूसरी बात, इस बंगाल की सरजमी पे तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है हर एक तबका के लिए, ममता बनर्जी का 74 से ज्यादा जो स्कीम है, पहला से लेके मौत तक का, वो तमाम स्कीम से किसी एक जात, किसी एक जबान, किसी एक फिरका के लोगों को नहीं, बल्कि इस बंगाल की मट्टी पे रहने वाले हर एक लोगों को फायदा पहुंच रहा है। बच्चा गर्भ होने से जब इंसान सरदार या कब्रिस्तान तक पहुंचता है, इसका फायदा पहुंचता है। इस जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, सब लोग को फ्री राशन, फ्री तालीम, फ्री यूनिफॉर्म, ये तमाम जो पॉलिसी है, इसके खिलाफ में जो विरोधी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि बंगाल में हम कमल छाप लेकर के अपना पैर जमा नहीं पाएंगे। बंगाल की सरजमी पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के बंगाल में हम कब्जा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने कुछ दलालों को यहाँ पे उतारा है, चाहे वो मील के नाम पे हो, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्तलिफ आवाज और दिगर तंजीमों के नाम से हो। मैं अपने खुसूसी तौर पर मुस्लिम तबका संख्या लोगों को ये अदा करना चाहता हूं कि ये जो विरोधी की साजिश है, हमारे मुस्लिम इलाकों में खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जहां पे डायरेक्ट नहीं जा पाती है, वहां पे माकपा के मुख्तलिफ जो भी है, आवाज हो या जुओ हो या छत्र हो, इस तंजीम के माध्यम से झुकना चाहती है। और कुछ जगहों पे अवैधी की पार्टी को लेकर के जो सामना झुकना चाहती है, उससे आपको होशियार रहना है। इसलिए ये लोग जहां जहां गए हैं वहां भाजपा को फायदा पहुंचा है। इनका मकसद यही है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जैसी ताकत को फायदा पहुंचाना। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना होगा। और ये बुद्धिजीवी मंच है, ये बुद्धिजीवी मंच है। अगर अभी अशोक तो कह रहे थे कि एक बात को झूठ इतना वायरल हो कि लोग बोले सच है, तो आपको झूठ नहीं, आपको सच बोलना है, सच बोलना है, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना है। और क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम चाय दुकानों में भी
पान दुकानों में भी, चलते हुए ट्रेनों में भी, चलते हुए बस में सफर करते वक्त भी, ये जो बंगाल की पॉलिसी है, बंगाल की जो सरकार करना चाहती है, ममता बनर्जी जो आवाम के लिए काम कर रही है, या जो दूसरी ताकत इस ताकत को तोड़ने की कोशिश कर रही है, द्वारे सरकार के माध्यम से ममता बनर्जी जो घर तक लोगों को सरकार का सेवा पहुंचाना चाहती है, इसका क्या हम विस्तार तरीके से प्रचार नहीं कर सकते हैं? यकीनन कर सकते हैं। और अगर ये हम करेंगे तो ये तमाम ताकतें का मुकाबला हम जम के कर पाएंगे। ये उम्मीद से करता हूं कि आज के ये सम्मेलन पश्चिम बर्धमान जिला का बुद्धिजीवी संगठनों मंच का जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन से पूरे बंगाल में दिशा मिलेगा कि हम लोग आज से यहाँ से आह्वान लेके उठेंगे, ये हम लोग आहत करके उठेंगे कि हम लोग चलते फिरते दुकानों में, बकानों में, जहां भी रहेंगे, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो सरकार है, उसकी जो आवाम की जनहित में जो कामें हैं, उस काम का प्रचार विस्तार रूप से करेंगे। और विरोधी ताकतें जो है मुल्क के अंदर में जो फिरका परस्ती फैलाना चाहती है, या जो पीछे से फिरका परस्तों को सपोर्ट दे रही है, माने बाया बाजू या दिगर जो पार्टी है, उसके खिलाफ में लोगों को हम लोग होशियार करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय बंगला, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, बंगाल बुद्धिजीवी संगठन मंच जिंदाबाद। তোমায় জানাই সালাম, তোমায় জানাই সালাম, তোমায় জানাই সালাम। क्यों सलाम दे रहे हैं बंगीय संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच को? हम बताएंगे तफसील से आपका सामने में, लेकिन हिंदी हमको इतना अच्छा आता नहीं है, हमको क्षमा कर दीजिएगा। फिर कोशिश करूंगा आप लोग को समझाने के लिए क्योंकि हम कलकत्ता से आया हुआ यहाँ, क्यों आए यहाँ आसनसोल में। हम आए ममता बनर्जी का एक दूत हिसाब से, ममता बनर्जी का एक प्रतिनिधि हिसाब से यहाँ खड़ा हुआ आप लोग का सामने में। तो हम कहना चाह रहा हूँ आपसे, गाछ मालूम है गाछ আমরা বলি একটি আমার পছন্দ মমতা ব্যানার্জির কথা, একটি গাছে দুটি ফুল, एक पेड़ में दो फूल दिखाई दिया है, एक है बंगीय संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच और एक है तृणमूल, छाए हुए दोनों। एक पॉइंट का दो मतलब दो पीठ होता है, एक तृणमूल, एक बंगीय संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच। हाँ, आप लोग का सामने बार बार एक चीज दोहराना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं पश्चिम बर्धमान में आया हूँ आप लोग का सामने। हम एक सारा गाछ लेकर आया हूँ आप लोग का यहाँ, बीज लेकर आया हूँ। आज यहाँ हम रोपण करके जा रहा हूँ, खेती करके जा रहा हूँ यहाँ। इंशाल्लाह आप लोग का प्यार मोहब्बत और हमारा साथ रहे तो पेड़ आस्ते आस्ते बड़ा होगा, उसका फूल जो होगा उसका माला पहनने का आसन पूरा घर घर में सबके गला में पहनना होगा। कुछ दिन ज्यादा दिन नहीं है। अब देख रहे हैं अभी चारों तरफ भ्रष्टाचार, दुर्नीति। हम इसलिए हम कहना चाहता हूं, दुनिया में कितने हैं नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। मर भी जाएंगे, मिट भी जाएंगे, याद रहेंगे आसनसोल का पीपुल, आसनसोल का आम पब्लिक, आसनसोल का माँ, आसनसोल का हर घर घर में बंगीय संख्यालघु को प्यार मोहब्बत जारी रहेगा, बंटवारा रहेगा। तो हम अजीज आप लोग का आसनसोल का गौरव, আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ, আমার প্রিয় মানুষ, बहुत परिश्रम किया है। आज से बहुत दिन से सुल्तान अहमद जो मरहूम चला गुजर गया है, उनका ऑफिस में फर्स्ट टाइम मेरा था, उनका साथ मुलाकात हुआ था। आप लोग का दिल दुख दर्द समझने वाला हर टाइम आप लोग का बारे में हम लोग को बोलता है, ममता जी को बोलता है। तो और कोई नहीं है, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का आसनसोल पश्चिम बर्धमान का चेयरमैन एक्स एमएलए सोहराब अहमद साहब को थोड़ा जोरदार ताली दीजिए उनका लिए, सोहराब साहब के लिए मंच पर मौजूद है, এখানে উপস্থিত আছে আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ, যার ডাকে আমি এখানে এসেছি। তিনি আর কেউ নয়, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট তৌফিক আহমেদ সাহেবকে জোরদার তালি দিলে ওর নাম মৌজুদ। আমার সঙ্গে এসেছে কলকাতা থেকে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি মাহমুদুল হক পুতুল সাহেব আছেন, আছেন আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ, প্রিয় মানুষ, আমার সঙ্গে সব সময় থাকে আমাদের ফিরহাদ হাকিম সাহেবের বড় দাদা, আমাদের মেয়র উনি আছেন, আমাদের নুসরাত আলী সাহেব উনি আছেন, এখানে আমাদের উপস্থিত আছেন। আমাদের ট্রেজারার শেখ হান্নান সাহেব আছেন, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি জিয়াউর রহমান সাহেব আছেন, আমাদের मेंबर अबू बकर सिद्दीक खान आছেন। जरूरत है देखिए, हम जो कहना चाह रहा हूं आप लोग से, आसमान में देखिए, जमीन में देखिए, जहां भी देखिए भ्रष्टाचार, दुर्नीति अभी सब जगह में फैल गया है। लेकिन हम दावे का साथ कह सकता हूं
आप लोग का सामने पे जो हम लेकर आए हूं बंगे और संख्यालघु बुद्धिमान एकदम सच है, पवित्र है, इसमें कोई दाग नहीं लगा सका, कोई आज नहीं आया। हम लोग कभी भी बंगे और संख्यालघु बुद्धिमान ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को तेल नहीं मारता, किसी को ऊपर नहीं, किसी को कटमनी नहीं खाते। हम लोग काम करने के लिए किसी का लिए हाथ नहीं फैलाते। हम लोग दिलो जान से आदमी का दर्द समझ के नहीं आया हुए हैं। अब लोग का मन में क्या चल रहा है, अब लोग क्या दुख है, कोई आप लोग का सहारा नहीं रहेगा तो एक सहारा रहेगा, उसका नाम है बंगे संख्यालघु बुद्धिजीवी, जो दिलो जान से हम लोग काम करता है। हम यहाँ आसनसोल आप लोग वोट मांगने नहीं आया हूँ, जब हमको वोट दीजिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए नहीं, हम आया हूँ आप लोग को दुख दर्द समझाने के लिए आया। आप लोग का यहाँ से हम जाके हमारा जो सबसे हम लोग का लीडर है, हमारा नेत्री ममता बंदोपाध्याय को जाके हम कहूंगा आप लोग आसनसोल में क्या क्या नहीं काम। डिप्टी मेयर साहब है, पूर्व विधायक काउंसिलर काफी यहाँ मौजूद है, सौरभ साहब है, फिर भी आप लोग का क्या क्या काम अधूरा है आसनसोल में। अगर हम लोग को बंगे और संख्यालघु बुद्धिमान को आप लोग बताएंगे, इंशाल्लाह हम देखे ममता बनर्जी को बोल के वो काम जो अधूरा काम है सब मिलकर फुल टीम अशोक लूथरा है, हम लोग का वाइस चेयरमैन साहब है, सब मिलकर हम लोग वो काम कर देंगे आपके लिए। यही ममता जी का चाहत है, यही ममता जी करता है। अब यकीन नहीं माने, हम कुछ दिन पहले गया था कुछ बिहार में एक म्यूनिसिपैलिटी अशोक लूथ जानता है, मेकलीगंज बोल के एक जगह, वहां काफी आदमी था, 30-40 हजार का आदमी था, बंगे और संख्यालघु बुद्धिमान का जिला का प्रोग्राम हो रहा था। तो हम जब पहुंचा, हम स्पीच दिया, स्पीच देने के बाद जब हम नीचे उतरा, हमको बहुत आदमी ने घेर लिया चारों तरफ से, बोला अर्जुन हक साहब ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन हम लोग का यहाँ म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, बट यहाँ 10 वार्ड ऐसा है, ऐसा गांव है जहां अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा, विद्युत नहीं पहुंचा है। 2011 में जब सरकार परिवर्तन हुआ है, हम लोग सोचा था, हम लोग उम्मीद के साथ जब हम लोग के घर में यार हेरिकेन नहीं रहेंगे, लॉन्ठन नहीं रहेंगे, मोमबत्ती नहीं रहेंगे, हम लोग का बिजली आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, हम लोग पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। लेकिन अभी तक 2014 हो गया, अभी तक हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया। आप लोग बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, कुछ कर सकिएगा? हम संग फिर स्टेज में चढ़ गया। वहां मेरा सिक्योरिटी था, बहुत पुलिस दिया हुआ था, यहाँ भी है, मौजूद है, वहां भी उसी से हफ्ते थाना का हमको बुलाया स्टेज में, अब आइए यहाँ। ये जो बात बोले ये लोग 10 गांव में 10 वार्ड में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पे, सच है क्या झूठ है? बोला सर सच है। हम उस टाइम पावर मिनिस्टर था मनीष गुप्ता साहब, हम स्टेज में उठ चढ़ा, मोबाइल से मेरा फोन लगाया, मनीष गुप्ता साहब को फोन किया हम, अरे मनीष दा আমি মেখলিগঞ্জ এসেছি প্রোগ্রাম করতে, এখানে বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চে, এরা বলছে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। তো মনীষ দা আমার মতো হতবাক হয়ে গেল, দেখ এটা কি সম্ভব? জানি না আমি কতদিন বাঁচবো, জানি না আমি বাংলার মানুষের জন্য কতদিন কাজ করতে পারবো, জানি না আমি কতদিন চিফ মিনিস্টার থাকবো। আমি বাংলার মানুষের জন্য গীতাঞ্জলি প্রকল্প নিয়ে এসেছি, আমি বাংলার মানুষের জন্য নিজ ভূমি নিজ গৃহ নিয়ে এসেছি। যেদিন বাংলার দার্জিলিং থেকে নিয়ে একদম সোনারপুর বারুইপুর, পাহাড় থেকে নিয়ে সমতল, কাকদ্বীপ থেকে নিয়ে কুচবিহার, যখন প্রত্যেকটা মানুষের বাড়িতে আর টালির চাল থাকবে না, মানুষের যখন বাড়িতে ইটের চাল থাকবে না, খড়ের চাল থাকবে না, অ্যাডভেস্টার থাকবে না, টিন থাকবে না, সবার বাড়িতে যখন পাকার ছাদ হবে, তোমার দিদি যদি বেঁচে থাকে তখন দিদির বাড়িতে টালির চাল ছড়িয়ে পাকার ছাদ বসবে, তার আগে নয়। এই হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিউটি। তিনি রাত দিন আপনাদের কথা ভাবছেন, মানুষের কথা ভাবছেন। আরে কত মোদি এলো, কত অমিত শাহ এলো, একমাত্র ছিল যে আছে থাকবে তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তোমরা এসেছো, তোমরা চলে যাবে ক্ষণিকের অতিথি, পরিযায়ী শ্রমিকের মতো। অতএব চিন্তা করে লাভ নেই। अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, अगर आसनसोल को आगे बढ़ाना है, बहुत कुछ शख्सियत ने बोला, अशोक दा ने बोला, वाइस चेयरमैन ने बोला, सौरभ दा ने बोला, अपना कुमारेश दा ने बोला है। एक बात आपको लोग को आज बोल के जा रहा हूं मैं, কত এলো, কত গেল, কত আসবে, ইনশাআল্লাহ আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লির মসনদে বসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাইম মিনিস্টার হয়ে দেখিয়ে দেবে ভারতবর্ষে কিভাবে আগে বাড়ানো যায়। কারণ আমরা বলি বেঙ্গল থিঙ্ক টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্ক টুমরো, বাংলা ভারতকে পথ দেখায়। ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়া ভালোবাসা যদি থাকে, আপনাদের আশীর্বাদ যদি থাকে, 2024-এ এই অশুভ শক্তি ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিয়ে ভারতবর্ষের গতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। और अभी की खबर बस यहीं तक। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।